Hey, what's up people? So in this video we are going to discuss the Bablu technique. Yeah, all you guys were pinging me up on the Instagram, on the WhatsApp and on Twitter as well कि सर एक बार Bablu technique फिर से समझा दीजिए ना please एक बार. So yeah, we are here with the Bablu technique once again. So the story is like when I delivered the speech on this technique on the Republic Day in the organization I was within. You guys started to ping me up. Okay, so yeah, on your demand, it's here. So basically, see guys, this is a complete theory. Understand the process, right? So basically, on that speech was my last speech in that particular organization. So I thought let's do something. Let's talk about a complete theory that would be helpful. Like it's not possible to discuss each and every um, point that leads a particular individual into the path of success. So I believe that let's discuss upon some theory. Okay, so it's a theory and you won't find it on Google. It's my theory and I have been pursuing it for last 3 years. So in order to understand it more conveniently and in a more better way, so I just have created a presentation. The slides are basically ready and ready to be presented, I guess. And those are eagerly waiting for us to get there. Okay, so the thing is, slides are waiting for us, and what are we doing? We are wasting our time. So let's quickly get to the slides. Let's go. Okay, so finally we are here and let's just quickly move on to the slides. And the slide का जो सबसे पहला पार्ट है वो ये कहता है the Bablu technique के बारे में है. Okay, so as I already told कि भाई ये एक लंबी चौड़ी थ्योरी है हम लोगों की. तो जब थ्योरी होती है तो वो डेफिनेटली एक क्लास के अंदर में कंप्लीट हो नहीं सकती. So in order to make this video a short and simple to understand, and this Bablu technique is going to be a long term process in your lifetime. तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर वीडियो को 3 फेजेस के अंदर में डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो सबसे पहला फेज आज का वी गोना डिस्कस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द बबलू टेक्निक इज. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गूगल इट. ठीक है, नहीं मिलने वाला ये. इट्स अ थ्योरी मेड बाय मी. ठीक है, और अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ करा नहीं है कि मतलब लाइक गूगल पर आ जाएंगे चीज़ें. ठीक है, सो इट्स अ टेक्निक. You will not find it Google. Definitely you can go follow me on Twitter. So the Bablu technique, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको जरा से एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इट स्टैंड फॉर बेटर ऑब्जर्वर, बेटर लर्नर एंड द अल्टीमेट अर्नर. सो नेवर कॉल इट बॉब्लू, इट्स बबलू. क्यों अब बबलू क्यों है कि देखो यहाँ पर जो ई होता है, ई इज साइलेंट. नो वाई इज साइलेंट? द रीजन इज कि व्हेन यू अर्न, डोंट टेल योर अर्निंग्स टू अदर्स. ठीक है, इसकी खुद की एक अलग फिलॉसफी है. विल डिस्कस इट इन सम लेटर सेशंस. बट आज के इस सेशन के अंदर में मेन जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए अबाउट द बी एंड ओ. नाउ हाउ टू बी अ बेटर ऑब्जर्वर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट ऑब्जर्विंग वेल. We'll discuss all about those things. Okay, so quickly move on to the next slide and let's discuss about our agenda. So I have found some key takeaways, like what are the topics that we would be going through. So the first thing that we are going to learn is what exactly the Bablu is. Okay, okay, so exactly the Bablu is. And again in today's session we are gonna deal with what to observe as well. These are the two topics that we'll be discussing today in this particular video or this session, I guess. And in the next video we're gonna discuss about now what to learn and what to earn, and why not 100% at anything. ठीक है, हमेशा ये कहता हूँ मैं कि 100% मत हो जाना किसी भी चीज़ में. 99.99% ही रहो, बट थोड़ी सी वो जो चीज़ होती है उसको थोड़ा सा छोड़ करके रखना चाहिए. वो दैट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया. सो ऐसा क्यों है उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बट अभी नहीं, इस सेशन के अंदर में नहीं, क्लास के अंदर में, नेक्स्ट सेशन के अंदर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो या let's move on to the first topic now, what exactly the Bablu is. ठीक है, so I want you guys to put your 100% attention in this particular slide and just go on and read this. A technique that I have
been following, there is a typo error, I have been following for past 3 years but never knew. ये मेरे बारे में है, मैंने इसको लिखा है, मैंने बताया है कि मैं 3 साल से इस चीज़ को कर रहा हूँ बट मेरे को कभी पता नहीं चला कि मैंने ऐसा क्या कर लिया. सो basically I can summarize it like a proper and a very long term the process of achieving for whatsoever you would have dreamt for. So basically यहाँ पर अगर मैं बॉबलू टेक्निक के बारे में आपको बताऊँ तो ये जो टेक्निक है ये पिछले 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ. हाँ, ये सच है कि पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने करी हैं. आई हैव बीन इन सो मेनी प्रोजेक्ट्स, आई डिड माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं. एक्चुअली वी आर नॉट हियर टू डिस्कस ऑल दोस. सो अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ आपको समझाऊँ कि बॉबलू जो टेक्निक है वो एग्जैक्टली है क्या, तो देखो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है या इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, ठीक है, या फिर बहुत से ख्वाब होते हैं, बहुत से सपने होते हैं जो कि हमें अचीव करने होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें अगर हमें चाहिए, वाकई में चाहिए, तो वहाँ पर क्या करना होता है, हमें बहुत सी चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बनानी होती हैं. वी वर्क ऑन आवर पावर स्किल्स, वी शुड वर्क ऑन आवर communication skills, and we should get skilled in any particular field, or stay focused, stay concentrated, and wake up early in the morning, have a better hygiene. बहुत सी चीज़ें होती हैं, सभी के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं, एक ऐसी थ्योरी हो जिसके अंदर में सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं. हम ऐसा कौन सा माइंडसेट रेडी कर सकते हैं जिसके अंदर में ये सारी की सारी डिफरेंट हमारी जो टूल सेट्स होती हैं या जो स्किल सेट्स होती हैं वो इंक्लूड हो जाएं, ऐसा क्या किया जा सकता है. तो मैं काफ़ी टाइम से उस चीज़ को फॉलो कर रहा था बट मेरे को खुद को नहीं पता था कि मैं इसका क्या नाम दे सकता हूँ. सो फाइनली आई एम हियर विद द बॉबलू टेक्निक. और सो ये होती है बॉबलू टेक्निक के बारे में हम लोग अभी और डिस्कशन करने वाले हैं. इट्स अ लॉन्ग वे गाइस, बी पेशेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगली स्लाइड जो है हमारी वो ये कहती है बीइंग अ बेटर ऑब्जर्वर. सो द जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉबलू टेक्निक इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर सेशन, और आई मे से यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है. वी गोना टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन, the power of observation, how to be a better observer. Now what are the consequences if you don't become a better observer. अगर आप एक better observer नहीं बन पाते हैं तो क्या इसके कोई consequences हो सकते हैं या कोई demerit हो सकती है इसकी. So और अगर हम लोग एक better observer हैं so what are the merits that we are going to get. So yeah, let's focus on this topic and let's just go through the statements that I have written. Being a better observer is always a good idea while you are at your initial stage of building a career. जब आप अपने करियर को बिल्ड कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्वर बन करके चलना इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया, इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया. ठीक है ना. वाई ऐसा क्यों है. सो यहाँ पर इसके लिए छोटी सी एक सब हेडिंग दी गई है जो जस्ट गो थ्रू इट and I want you guys to just take a screenshot of it. It would help, if it would definitely help you guys. Okay, so just take a screenshot of it and I'll make this presentation available, so don't worry for that. I'll make this presentation available for you guys. I'll provide the link in the description as well. Just after all the sessions gets on YouTube, we'll release the viewable content, we'll release the so that you guys can go through these presentations anytime you want. तो अभी फिलहाल के लिए नहीं होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में इसका लिंक. आफ्टर वी अपलोड ऑल द सेशंस उसके बाद ये लिंक अवेलेबल होगा डेफिनेटली. सो या लेट्स गो थ्रू दिस. वी ऑल कैन वॉक प्रॉपर नाउ एंड रन एज वेल. आज के टाइम पर हम लोग प्रॉपरली वॉक कर सकते हैं और चाहे तो दौड़ भी लगा सकते हैं, दौड़ते हैं भी, राइट. बट डू वी रिमेंबर दैट व्हेन वी वर एट आवर इनिशियल स्टेज वी यूज्ड टू वॉक ऑन 4. आपको याद होगा जब आप अपने इनिशियल स्टेजेस पर थे तो आप अपने 4 पैरों से चला करते थे, याद होगा. ठीक है, 2 हाथ आगे और पैर पीछे. कई बार तो रोल डाउन भी किया करते थे हम लोग, याद है आपको. सो वो जो टाइम था हमारा जहाँ पर हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं. ठीक. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम को जरा सा याद करो और सोचो कि वो तुम्हारा इनिशियल स्टेज था. ठीक है, और उस पर्टिकुलर इनिशियल स्टेज पर यू आर नीडेड टू ऑब्जर्व, राइट. बट स्टिल उस वक्त ऑब्जर्व करने की अपनी जो माइंडसेट कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो उतनी ज़्यादा होती नहीं है, उतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ अपने अंदर में होती नहीं है उस टाइम पे. ठीक, हम उतने कैपेबल नहीं थे कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें और दौड़ना सीख सकें.
So our elders held our hand and they lifted up on the ground and taught us how to walk. कभी गिरे, कभी उठे, कभी रोल डाउन करा, बट उंगली पकड़ करके ही चलना सीखा है. चलना तो उंगली पकड़ करके सीख गए, बिकॉज दैट वॉज द इनिशियल स्टेज. क्या जिंदगी भर किसी का उंगली पकड़ करके चलते रहोगे? ऐसा हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली इट इज़ नॉट. सो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि दौड़ लगाना खुद से सीख सकते हो. दिस इज द थिंग गाइस, व्हेन यू बिगिन एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, when you are going to build your own career, at that time what you have to do, you have to observe. You can observe your seniors, you can observe your different clients as well, but just observe. Okay, so our elders held our hands and made us learn the mechanism of walking. Okay, next moving to the next slide. Now what to observe? This is basically what a question arises in each one of you guys कि भाई हमें ऑब्जर्व करना क्या है. सर चलो ठीक है, आपने हमको ये बताया कि भाई तुमको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, ये तो आपने बता दिया, बट ये कौन बताएगा हम लोगों को कि हमको क्या ऑब्जर्व करना है? व्हाट डू वी गाइस हैव टू ऑब्जर्व? मान लिया कि मैंने नई नई जॉब शुरू करी, अब बताओ इसके अंदर मैं क्या ऑब्जर्व करूं? चलो मान लिया मैं कॉलेज के अंदर में गया, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ, अब बताओ मैं क्या ऑब्जर्व करूँ? चलो मान लिया कि मेरी ज़िंदगी एक फ्रीलांसर की तरीके से शुरू हो रही है, तो अब मैं क्या ऑब्जर्व करूँ? मैंने नया स्टार्टअप करा है, अब क्या ऑब्जर्व करूँ? देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिचुएशंस. कब कहाँ पर क्या ऑब्जर्व करना है सर, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा ना. देखो 3 पार्ट्स में बांट दिया. फर्स्ट 2 पार्ट्स, द पॉजिटिविटी एंड द स्किल्स, the most important, and the mandatory, those are mandatory. And the third one, that is the spirituality, that is optional. But कोई भी चीज अगर ऑप्शनल है, they always work as an elective, like an add-on, like a plug-in. भाई तुमने घर खरीद लिया, घर के अंदर में क्या है? वाटर फैसिलिटी है, पानी पीने की तो सुविधा है, लेकिन जब गर्मी आ जाएगी तो तुम्हें ठंडा पानी चाहिए होगा, तो फिर तुम उसके लिए एक प्लग इन ऐड करते हो, रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर के अंदर में पानी रखोगे, पानी ठंडा होगा, गर्मी के अंदर में ठंडी पानी मिलेगी. घर तो था अपने पास में. अगर तुम पॉजिटिविटी को चाहोगे, पॉजिटिविटी मिल जाएगी. स्किल्स चाहोगे, स्किल्स मिल जाएंगे. स्पिरिचुअलिटी चाहो रखना, नहीं चाहो रखना, मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर रखते हो तो कुछ एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही होंगी तुम्हें. ठीक है, डेफिनेटली मिल रही होंगी. चाहे तो आप सुबह सुबह खाना बना करके रख दें और फिर उसी को रात में खाएं, या तो फिर 3 वक्त पर ताज़े ताज़े खाने बने, गरम गरम खाने बने और उसे आप खाएं. तो ये चीज़ें हैं. स्पिरिचुअलिटी कुछ एक एडिशनल फंक्शनल ऐड कर देंगी. ठीक है, तो वो है. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ईच ऑफ देम. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे पॉजिटिविटी के बारे में. सो व्हाट टू ऑब्जर्व जब भी क्वेश्चन अराइज हो, तो देयर आर 3 थिंग्स दैट वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व. दैट इज द फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिविटी, एंड द सेकंड इज स्किल्स, एंड द थर्ड वन इज द spirituality, right? Okay, so the third one is optional. Let's just keep it aside and we'll focus on positivity and skills, right? So when we talk about the positivity, जब positivity के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब निकल करके आता है? Let's just quickly go through the statements written here. Why to worry for what's wrong and why can't we enjoy for what's right? ब्यूटीफुली रिटन. तो मैंने लिखा है तो ब्यूटीफुली रिटन तो होगा ही होगा. सी, क्यों परवाह करना कि गलत क्या है, और क्यों ये नहीं हम एंजॉय कर सकते कि सही क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविटी, राइट? स्टॉप सीकिंग द नेगेटिविटी एंड सीक फॉर द पॉजिटिविटी. नेगेटिविटी को देखना बंद कर दो और बस शुरू कर जाओ पॉजिटिविटी को देखना. एन इंडिविजुअल नेवर नीड्स एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ म्यूजिक और अ वीडियो. पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर एंड इन एवरीवन. ठीक है, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड गाइस कि आपको किसी वीडियो या किसी एक म्यूज़िक की कोई भी ज़रूरत, कर हर मैदान फतेह को आज एक बार सुन लेते हो तो 1 दिन 2 दिन के लिए हो सकता है एनर्जी बूस्टअप रहेगी, हो सकता है 1 घंटे के लिए एनर्जी बूस्टअप रहेगी, फिर उसके बाद में क्या होगा, वापस से अपने थ्रेशोल्ड के नीचे आ जाओगे. सो या यू डोंट नीड दिस. इफ यू वांट पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी इज एवरीवेयर, in everything, in everyone.
तुम में भी पॉजिटिविटी है, मुझ में भी पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में भी है, पॉजिटिविटी उस मोबाइल फ़ोन के अंदर में भी है जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे होंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? पॉजिटिविटी इस कमेंट सेक्शन के अंदर में भी हो रही होगी, पॉजिटिविटी इस वीडियो को लाइक करने में भी है, मेरे लिए है। सो लेट्स नॉट गेट टू देयर। ओके, सो या, तो पॉजिटिविटी हर किसी चीज़ में आपको दिख सकती है। आई हैव made some great examples for that also, so we'll discuss it in the next slide. Keep patient guys, ठीक है? मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि यार पॉजिटिविटी क्या क्या चीज़ों में हो सकती है और कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो there are 5 different things that I have made for you guys, कि इन 5 चीज़ों में से पॉजिटिविटी निकाल करके आप देख सकते हो, और कितना बेहतरीन आपका एक्सपीरियंस होगा जिस दिन आप इस पॉजिटिविटीज़ को निकाल करके देख रहे होंगे अपने लाइफ के अंदर में। आप नोटिस करना कि लाइफ कितनी बेहतर ढंग से चेंज होने वाली है आपकी। ओके, सो या, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज स्किल्स। It's always a great idea to observe what other people are doing. I'm not saying कि किसी को कॉपी कर लो, no, never do that, never do that. But to see what other people do is always a great idea. देखो एक बारी के सामने वाला बंदा कर क्या रहा है, ठीक है? वो कर क्या कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? और अगर खेल भी रहा है तो हाउ इज ही परफॉर्मिंग? क्या है उसके परफॉर्मेंसेस? इज ही एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर? Is it something like that? Is he a medical student? Is he a computer science student? What he or she is doing, just observe. Observe once and see if they are comfortable in that particular situation. If they are, they would definitely be enjoying for whatever they are doing. If they have a goal of clearing the CAT examination, then severus and continuous studying of this 16-hour duration is nothing for them. मैंने आज अगर एक गोल सेटअप करा है कि 8 LPA से मैं अपनी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर 6 LPA पर हाइप करवाऊंगा, तो 16 hours of coding is nothing for me. I'll bloody enjoy it. This is the main agenda. When people watches me कि सर सुबह उठ जाते हैं जल्दी, ठीक है, पढ़ाते हैं, there was a schedule that I was following 9 to 6, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के शाम के 6 बजे तक continuous study, continuous teaching. And not only that, मैं आपको बताऊं अभी कि फिलहाल में आई एम स्टडिंग 9 to 9 पढ़ रहा हूं, सुबह 9 से रात को 9. सो पीपल से इसकी कैसे कर लेते हो? बिकॉज आई एंजॉय दिस, द स्किल्स आई एम गेटिंग, आई एम ब्लडी एंजॉइंग इट. दिस इज द एजेंडा, दिस इज द मोटो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. जब आप किसी दूसरे को देखते हो कि वो अपनी स्किल्स में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार, अगर हमें एक राइट स्किल मिले जहाँ पर हम कंफर्टेबल होंगे, तो हो सकता है हम भी अपने काम को एंजॉय कर पाएं. डेफिनेटली, राइट? सो द थिंग इज, इट्स अ ग्रेट आइडिया टू एक्सप्लोर पीपल हु आर स्किल्ड इन डिफरेंट फील्ड्स एंड हैव अ कन्वर्सेशन विद देम. ये बहुत ही अच्छा एक प्लान है, ठीक है? मैंने बड़ा फॉलो करा है. डिफरेंट लोगों से मिलो, ठीक है, जो कि स्किल्ड हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर में. टॉक टू देम, आस्क देम why are they so comfortable in doing whatever they are doing, anything. Just have a conversation, and you start feeling कि हाँ, I could also try something, ठीक है? So how to get yourself skilled now, ठीक है? You should start let yourself understand the comfort of your mindset. आपके दिमाग जो है ना, आपका जो सोच है, आपकी जो सोच है, वो किस पॉइंट पर आकर के कंफर्टेबल फील कर रही है, इस चीज़ को समझने दो अपने, ठीक है? लेट योर सोल अंडरस्टैंड इट, लेट योर माइंड अंडरस्टैंड इट कि व्हाट इज़ योर कंफर्ट जोन, ठीक है? ट्राई डूइंग डिफरेंट स्टफ्स एंड सी व्हाट सूट्स यू द मोस्ट. दूसरे तीसरे चौथे काम करने शुरू करो और देखो फिर क्या तुमको सूट करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी एंड द स्किल्स. विल डिस्कस सम एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. It will give us a more clear-cut pictures. So, but before going to the next slide, I'll come to the spirituality part, the most important part.
मैं बोल जरूर रहा हूं कि ये ऑप्शनल है, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि प्लीज ऑप्ट इट एज एन ऑब्जर्वेशन. Observe how people meditate, how people chant mantras, and how people worship. Worshipping is not something that we should regret. रिग्रेट नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है, बुरा नहीं समझना है इसको, ये अच्छा है. यू शुड नेवर रिग्रेट इट. Worshipping is always like you are remembering the Almighty, you are remembering the God, you are talking, uh, let your Atma talk to the Paramatma. This is what we call spirituality. It is not like waking up at the 5 o'clock and taking a bath from cold water ठीक है, and just like going to the temple barefooted and start chanting mantras. It's not like that. Spirituality is the spirituality has nothing to do with that, basically, I could say. Yeah, spirituality has nothing to do with that. Spirituality is all about your understanding what your soul wants. हम हमेशा वो करते हैं जो अपने दिमाग के अंदर में बातें हैं, हमेशा वो कर जाते हैं जो अपने दिल के अंदर में बातें हैं, बट जो अपनी आत्मा चाहती है उसका क्या. अंडरस्टैंड, देयर इज अ ब्यूटिफुल पर्सन रिसाइटिंग इनसाइड यू, दैट इज योर सोल. और अगर उस ब्यूटीफुल पर्सन को आप बाहर निकालना चाहते हैं, उस ब्यूटी, वो इनर ब्यूटी को अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी वुड हेल्प यू आउट. वन मोर थिंग, spirituality helps you to rejuvenate. What is the meaning of rejuvenation? Like it's mandatory for us to take proper rest. Okay, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कल सुबह फिर से उठना है, मंडे मॉर्निंग काम पे जाना है. अंडरस्टैंड द टॉपिक, अंडरस्टैंड द पॉइंट. जब आप सोओगे नहीं तो उठोगे कैसे? सोना ज़रूरी है ताकि उठ सको. This is what we call the process of rejuvenation. बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर लिए, बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. डेफिनेटली अब लाइफ है, तो लाइफ में ढेर सारे जहाँ पर बर्तन होते हैं, कहते हैं ना कि जहाँ ढेर सारे बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ें तो होती ही होती हैं. तो डेफिनेटली यार यहाँ पर भी आवाज़ें होंगी. क्योस हो जाता है माइंड के अंदर में बहुत ज़्यादा. ना हाउ टू गेट रिलैक्स्ड, हाउ टू गेट रिलैक्स्ड. रिलैक्स कैसे होना है? किसी भी एक एंटरप्रेन्योर की डॉक्यूमेंट्री उठा लो, या किसी भी एक बिलियनियर या मिलियनियर की कोई एक डॉक्यूमेंट्री उठा लो, सब ने एक न एक पॉइंट पर रिलैक्सेशन के बारे में बोला ज़रूर है. क्यों बोला है? जब ये माइंड रिलैक्स होता है ना, तो ये कॉन्क्रीट डिसीजंस ले पाता है. और जब माइंड में बहुत ज़्यादा क्योस होते हैं ना, तो कॉन्क्रीट डिसीजंस तो छोड़ो, ये डिसीजन ही नहीं ले पाएगा. सो रिलैक्सेशन इज द फैक्टर दैट यू टेक अ कॉन्क्रीट डिसीजन. और हम सभी को पता है कि यार कॉन्क्रीट डिसीजंस लेने कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं. ऐसा एक डिसीजन जिसके ऊपर कुछ और नहीं आता हो, सिर्फ और सिर्फ हमारा डिसीजन, हमारा फोकस हमें दिखाई दे रहा है, हमें हमारा गोल दिखाई दे रहा है, ऐसे डिसीजंस लेना कैसे पॉसिबल होता है? पॉसिबल तब होगा जब आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा. हाउ टू अचीव दिस रिलैक्सेशन? In order to achieve this relaxation, you need your soul, your body, your mind, everything, your complete structure, the complete structure that is visible, and also the part of your body that isn't visible. I'm just talking about your soul. Yes, just believe in it. Just believe in it. If you're a science guy, then you can just skip this video. But if you believe in this spirituality part, just go forward with me. Okay? Just continue listening to me and be patient. Patience is the key to success. This is what I believe. Okay? There are a lot of things that leads a person to success, but yeah, one of the leading factor, I would say, is patience. So yeah, spirituality helps you to rejuvenate. When this complete body needs to relax, it will relax. But when you allow it to rejuvenate, now how to let your body rejuvenate, how to let your soul rejuvenate, how to let your mind rejuvenate? How will it be rejuvenating? It would be rejuvenating with the help of mantras.
with the help of worshippings. This is what we all Hindus are made for. This is what Hinduism and Sanatan is all about. Basically, guys, I'm not taking it more further, क्योंकि this is not about any dharma or anything else. Okay, so this was just about believing in soul connecting to the Almighty, the Atma meeting Paramatma. It's all about that. Okay, and when your Atma connects with the Paramatma, you start getting rejuvenated, you start getting relaxed, and yeah, you can take concrete decisions. So it's an add-on to all those positivities and skills that you will be having, right? Okay, so let's move on to the next slide, and here we have the examples, right? So we have positivity and skills. So when we talk about positivities, there are 5 points that I have given to you guys. ठीक है, अभी चलो जल्दी जल्दी फटाफट से क्या करते हैं, वीडियो लंबी होगी तो यहाँ पे फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द सनराइज, राइट? सनराइज, उगता हुआ सूरज. उगते हुए सूरज को देखो, उसको देखने से क्या होगा, पॉजिटिविटी मिलेगी. देखो, कल डूब गया था, आज उग गया है. ठीक है, मतलब डूबने के बाद भी उग जाता है. तो ये देख करके तुमको क्या मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी. इट्स अ पॉजिटिव वाइब, इट्स अ पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वाइब, एंड इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ. सबको पता है कि डूबा है लेकिन कल उग जाएगा. तो इसी तरीके से इसके अपोजिट डायरेक्शन पर भी जाकर के देखना है हमें, सनसेट को भी देखना है. इफ वॉचिंग द सनराइज गिव्स अस पॉजिटिविटी, देन वॉचिंग द सनसेट विल आल्सो गिव अस द पॉजिटिविटी. बोलेगा, बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि सर नहीं सर, वो नेगेटिविटी देता है. सर सूरज इतना था सर, रोशनी मिल रही थी और सब कुछ इतना अच्छे से दिखाई दे रहा था. वी वर हैविंग द क्लियर कट पिक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट वी सॉ. फिर अचानक से सर डूब गया, फिर हमको आर्टिफिशियल लाइट्स लेकर के आनी पड़ी. सर दिस इज कॉल्ड नेगेटिविटी. सर नहीं, नेगेटिविटी नहीं है. नेगेटिविटी है, मैं मानता हूं, देखो है, नेगेटिविटी है, बट तुमको क्यों देखना है. इन द लास्ट स्लाइड, लेट मी गो बैक टू द लास्ट स्लाइड दैट we discussed. Okay, so yeah, this is the positivity part. Again, see this point, why to
what's wrong and why can't we enjoy for what's right? जो गलत है उसको देखना ही क्यों, जो सही है उसको देख करके एंजॉय क्यों नहीं कर सकते? चिंता हमें क्यों हो कि ये सूरज डूब रहा है? तो गधा, तुमको पता होना चाहिए कि ये वापस उगेगा। हम सबको पता होना चाहिए। ऐसे फुलिश और उसकी फ्रेग्रेंस को निकालते हैं और डीओ बनाते हैं सर। तो गर्मी में सबसे ज्यादा कौन काम आ रहा है? फूल। वी टॉकिंग अबाउट द फ्लावर्स विच आर कंसीडर्ड सेंसिटिव। तो इनका भी अपना खुद का एक पॉजिटिव वाइब है। बरगद बहुत बड़ा, बहुत विशाल, काटना बड़ा मुश्किल होता है, उजाड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्या आफत है ये, जगह बड़ा कैप्चर कर लेता है। गर्मी में वो भी काम आता है। छांव सबसे ज्यादा वही देता है। द छाया, व्हेन यू नीड छाया, you'll seek for a bargad. You'll see a banyan tree and you'll just go there and sit for as long as you want. क्यों? क्योंकि छांव मिल रही है वहां पर सबसे ज्यादा छाया मिल रही है। We never know कि कौन सा बच्चा बड़ा होकर के क्या बन जाएगा, किस स्टूडेंट की माइंड किस डायरेक्शन में चली जाए और वो किस फॉर्म में बदल जाए। We never know. Just have faith, have a belief in your own self that I will become something. I will become. जरूर कुछ ना कुछ बनूंगा। बस ये याद रखना, किसी बंजर जमीन में दफन मत हो जाना। बंजर जमीन में जाओगे तो दफन हो जाओगे। और अगर एक अच्छी खासी जमीन पर जा रहे हो जहां पर अच्छा खासा कल्टीवेशन हो सकता है, तो वहां पर उगना शुरू करोगे। यू विल स्टार्ट टू ग्रो। सो टेक डिसीजंस वाइजली। ठीक है, टेक योर डिसीजंस वाइजली। तभी क्या होता है कि पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल में एडमिट करने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही वो क्या करते हैं, बच्चों को एक प्रॉपर स्कूल के अंदर में एडमिशन दिलवा देते हैं। नहीं, दिस इज द बेस्ट स्कूल फॉर माई चाइल्ड, हियर माई चाइल्ड विल ग्रो, हियर ही विल गेट द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और शी विल गेट द प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज। So yeah, let's move on to the fourth point. This is also one of my favorite. Whenever I see a hosted flag, लहराता हुआ झंडा, जब झंडे को हम लोग फ्लैग होस्टिंग कर देते हैं और झंडा जब लहरा रहा होता है, तो कभी उस झंडे ने कभी ऐसा रिग्रेट नहीं करा कि हवा अगर ईस्ट के डायरेक्शन पर बह रही है तो मेरे को वेस्ट में बहना है। ऐसा नहीं, हवा लेफ्ट को जा रही है तो मैं भी लेफ्ट को मूव करूंगा हवा के साथ, लाइक फॉलोइंग द डायरेक्शंस। And same goes with the water droplet. Just drop a water on any surface, on a movable surface, जिसको आप मूव कर सको, जिसको आप शेक कर सको, and see जहां पर टिल्ट होगा वो आपका सरफेस, वाटर ड्रॉपलेट उधर की साइड पे जाएगी। इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन विदाउट एनी वरी, विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ भी नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट what's negative going to happen. Again I will take you this last slide. Positivity. The positivity. This is what we call positivity. Observe the positivity. When you are positivity, you forget about all the bad consequences that would happen in future. No, we don't have to worry. हमें क्यों जानना? हमें नहीं जानना। हमें तो ये देखना है कि अगर डायरेक्शन हमारा उस पॉइंट पर फोकस करने को कह रहा है, सो वी विल फॉलो द डायरेक्शंस। लोगों ने बोल दिया कि तुम जाओगे, तुम वही करोगे। मजबूरी में मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी। It was not my own will, but now it is. Now it is. So कैसे? How it all happened? I never wanted. इंडिया में अपने शौक से टीचर बनता कौन है भाई? कोई नहीं बनता। But now it is my own choice. Now it is my privilege. I feel privileged. I am a teacher. I am an educator. I educate people. It is my privilege. It is a trait that can be seen in me. लोग देखते हैं, लोगों को पता चलता है कि हाँ ये he is an educator. He is a teacher. He educates people. This is a trait that can be seen in me. So this is the thing. Positivity will take you to a very upper level. Very upper level, guys. Very upper level.
अब बात करते हैं कि ये सर पॉजिटिविटी और कहाँ से आ सकती है, क्या इसके प्रॉपर रिसोर्सेज है? ना भाई, रिसोर्सेज मैंने लिखे हैं, स्किल्स में लिखे हुए हैं, देखो ना रिसोर्सेज ही हैं। स्किल्स देखो जरा यहाँ पर, रीडिंग, द फर्स्ट स्किल इज रीडिंग, गो फॉर इट, स्टार्ट रीडिंग इट आउट, एनीथिंग दैट यू कुड स्टार्ट विथ। बोलेंगे कि सर नोवेल समझ में नहीं आता सर, नींद आने लगती है। कौन बोला नोवेल पढ़ने? मैंने बोला नोवेल पढ़ो? मैंने कभी तुमको सजेशन दी यू शुड स्टार्ट रीडिंग एनी नोवेल्स? मैंने कभी बोला? कभी नहीं बोला। स्टोरीज अच्छा लगता है, पढ़ो ना। रोमांटिक बुक्स अच्छी लगती हैं, रोमांटिक बुक्स पढ़ो ना यार। गो फॉर रीडिंग अ लव स्टोरी। तुमको बायोग्राफीज पढ़ना अच्छा लगता है, गो फॉर इट। ऑटोबायोग्राफीज अच्छी लग रही, वो पढ़ लो। कुछ नहीं अच्छा लग रहा, अरे अपना नोट्स पढ़ लो। कुछ वो भी नहीं अच्छा लग रहा सर, डूब मरो फिर, क्योंकि ये स्किल अगर नहीं हासिल करा तो कुछ नहीं हासिल करा। रीडिंग नहीं करी किसी चीज की तो कुछ भी नहीं है इसमें फिर। यू हैव टू रीड। इफ यू डोंट रीड, देयर इज अ वेरी ग्रेट कोटेशन हु सेड इट, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। अगर आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि हु सेड दिस कोट। आई जस्ट फिगर इट आउट कि किसने कहा था ये कोट, बट दैट कोट हैज टेकन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ माई माइंड। और मेरे माइंड का वो पार्ट बस उसके पास ही है, वो छोड़ता ही नहीं उसको। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा माइंड उसको नहीं छोड़ता, या वो पार्ट, वो जो कोटेशन है वो मेरे माइंड को नहीं छोड़ता। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आई कुड से, बट द थिंग इज कि दैट कोटेशन सेज इफ यू रेस्ट you rust. If you are in a struggling phase or if you are building a career, don't rest guys. Rest in a proper way. Like resting, many of the people think like आज 8 घंटे सो लिया, कल 6 घंटे सोया था, आज 10 घंटे सो लेता हूँ, कल वाली नींद भी आज पूरी हो जाएगी। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ रेस्टिंग. You should rest, but if you rest in extra, you start getting rust. जंग लगना शुरू हो जाएगा. This is what the concept is. So when you have some free time, just don't let it go like anything. Just waste it on scrolling the Instagram feeds. Just don't waste your time on scrolling the Twitter handles, watching different memes and going through the reels. Just don't waste your time. Try reading some books. ठीक है. एंड कुछ भी नहीं अच्छा लगता पढ़ने में, खुद के नोट्स उठाओ, स्टार्ट रीडिंग देम. उनसे भी कुछ मालूम चलेगा. मैंने बोला लास्ट स्लाइड फिर से अभी निकालूंगा नहीं, मैंने बता दिया है कि पॉजिटिविटी हर चीज में होती है. वो नोट्स निकालोगे उसमें भी पॉजिटिविटी मिलेगी. आफ्टर रीडिंग जस्ट गो फॉर राइटिंग डाउन समथिंग. कुछ भी लिखो, आज क्या हुआ तुम्हारे साथ वो लिख लो, कल क्या करने वाले हो वो लिख सकते हैं, परसों का क्या सोचा वो लिख लो. राइट डाउन योर फीलिंग्स. किसी ये फीलिंग्स हैं तो वो लिख लो. एट दिस एज वी डू हैव एड्रेनलिन बूस्टेड एंड दिस इज नॉर्मल. इफ यू हैव एनीथिंग just write it down on a piece of a paper, or I should say go buy a diary and start writing it down, whatever you feel. If not, whatever you feel you want to write on a paper. So what you can do is you just read something. Maybe you could go for reading some articles on the newspaper, or maybe on some magazines, or maybe on the internet. Whatever you have understood till, just write it down on a piece of paper, or on a diary, or on a copy, or on a notebook, anything. Just write it down. ये मेमोराइज हो जाएंगी बातें, जो भी पढ़ा, जो भी समझा, वो तुम ऐसा हो जाएगा कि तुम समझाने के काबिल हो जाओगे. और यहीं से जनरेट होती है आपकी तीसरी स्किल, दैट इज स्पीकिंग. पहली स्किल रीडिंग हो गई, अच्छे से कर लिया, हो गया. दूसरी स्किल राइटिंग है, अच्छे से कर लिया, हो गया. तीसरी स्किल तो अपने आप बन रही है, स्पीकिंग. हो जाएगा भाई. तुमने पढ़ा है अच्छे से, तुमने लिख लिया है अच्छे से, अभी तुम बोल भी सकते हो. जस्ट गो फॉर इट. यू विल फील कॉन्फिडेंट. पब्लिक स्पीकिंग इतनी डिमांड में चल रही है, फिर भी लोग आगे नहीं बढ़ते.
लोग कॉन्फिडेंट नहीं फील करते. वाई? देयर इज अ बिग रीजन. Most of the people spend timing in writing but not reading. Most of the people spend timing in reading but not writing. When you read and write in a proper balance, you raise your threshold. You raise your threshold, you know. फिर डूबना नामुमकिन हो जाएगा. तुमको पानी के अंदर में डुबाने के लिए लोगों को ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हारे लाइफ का बैलेंस मेंटेन हो गया. रीडिंग भी कर ली, राइटिंग भी कर ली, अब पब्लिकली स्पीक करने के लिए रेडी हैं हम. हमने पढ़ा भी है, हमने लिखा भी है, मेरे दिमाग में सारी बातें हैं. आई एम 100% एट दिस थिंग. नॉट 100%, कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता किसी भी चीज में, बट मैं 90% हूं, मैं 80% हूं. दैट इज इनफ, मोर देन इनफ गाइज. 40% की नॉलेज लेकर के लोग अपने आप को आज यहां पर बादशाह मानते हैं. गो फॉर इट. रीड, राइट एंड यू आर ऑल सेट फॉर स्पीकिंग. When you have all these three skills in yourself, you can say that I have the power skill. The power skill, the last skill is the power skill. A power skill is the way of communication, the way to interact with people, the way to act upon different situations, all those things, all those things. This is what we call the power skill. Do I have something on my next slide? Let me see. Yeah, this is the main thing that I need to share with you guys. The biggest startups allocate 80% of power skills to their employees. जितने भी बड़े स्टार्टअप्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, 80% पावर स्किल्स अपने एम्प्लॉयज को दे रहे होते हैं. सारे एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग लगा दी कि बेटा तुमको पावर स्किल सीखना है. पावर स्किल क्या है सर? सर इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं है. नहीं, डजेंट मीन कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए. यू नीड हाउ टू कम्युनिकेट. अपनी बात लोगों तक पहुंचा देना इज दैट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल. दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि सामने वाले को चाइनीज आती, तुमको हिंदी आती, वो चाइनीज में बोलता रह जाएगा, तुम हिंदी में बोलते रह जाओगे, दोनों को बातें समझ में नहीं आएंगी. तो वी बोथ चोजन ग्लोबल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड इंग्लिश. तो हमने इंग्लिश को बोलना शुरू करा. अभी चाइनीज भी इंग्लिश बोलेगा, मैं भी इंग्लिश बोलूंगा, हम दोनों इंग्लिश बोलेंगे, हम दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में आ जाएंगे. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो तो बात की बात है भाई. पहले अपने खुद के लैंग्वेज में तो बातें करना सीखो. हिंदी ढंग से आती नहीं, इंग्लिश के बारे में बातें करते हैं. हिंदी ढंग से सीखा नहीं, हिंदी में ढंग से कंफर्टेबल होते नहीं है. हिंदी में किसी को बोल दो यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच इन हिंदी, नो, उसकी तो वहीं पर जान निकल गई बेचारा. वो ही विल स्टार्ट शिवरिंग आउट ऑफ फियर. ही और शी दे विल स्टार्ट शिवरिंग आउट ऑफ फियर. कांपने लगेंगे डर से. नहीं यार मेरे को स्पीच नहीं देनी. क्यों नहीं देनी भाई? बिकॉज दे आरंट कंफर्टेबल in delivering what they have, delivering the information that they have. क्यों? If I have any information, I will deliver it to the audience. This is what most of the job companies do. If you are in a corporate, if you are in any business or in anything, the work you do there is only the 30%. मैं कोडिंग एस्पिरेंट हूं, मैं प्रोग्रामर हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं. कोडिंग इज ओनली द 30% that I do. Rather 70% is what? Communicating with the people, working in a project. कंपनी ने हायर कर लिया एक एम्प्लॉय, देखा कि उसकी कोडिंग स्किल बड़ी अच्छी है, वो 4 लैंग्वेजेस के अंदर कोड कर सकता है. ही हैज अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, बहुत बढ़िया. हायर कर लिया उसको. हायर करने के बाद में क्या हुआ? हायर करने के बाद में जब उसको एक टीम में डाला गया, वैनिश्ड. दैट गाय वैनिश्ड. गायब हो गया बंदा. लग ही नहीं रहा था कि ये वही बंदा है जो इंटरव्यू के टाइम पर कॉन्फिडेंट था इतना ज्यादा. टीम में काम नहीं कर पा रहा भाई. क्यों नहीं कर पा रहा? Because of the lack of the power skills, lack of the soft skills. He cannot communicate. उसके अंदर जो बातें वो टीम को नहीं बता पा रहा. वो नहीं बता पा रहा कि उसको ये गलत लग रहा है. वो नहीं बता पा रहा. वो बोलने में घबरा रहा है कि इस पॉइंट पर जो अपने कोड लिखा है, ये कोड अगर इस तरीके से लिखा जाए तो ये एक बेटर अप्रोच होगा. वो अपना अप्रोच रख नहीं पा रहा सामने.
वो अपनी स्किल्स को सामने नहीं रख पा रहा, कितनी भी स्किलफुल क्यों ना हो। जब तक पावर स्किल्स नहीं आएंगे ना, जब तक सॉफ्ट स्किल्स नहीं आएंगी, तब तक कुछ भी नहीं है। और ये सॉफ्ट स्किल्स, ये पावर स्किल्स कब आती हैं? पर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कब आती हैं? व्हेन यू स्टार्ट स्किलिंग योरसेल्फ इन रीडिंग, writing, and the third one you automatically get after reading and writing, that is the speaking skill. Get perfect in these three skills. Not on 100% perfection you need, but you need to be 90%, 80% perfection. Start getting yourself skilled in these three particular things: reading, writing, and the third one you automatically get, speaking. And when you get all these three things in your life, will get you the fourth thing automatically, that is the power skill. So I guess we are all done for today's session. इस वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे गाइस, इतना ही रखेंगे। आज का ज्ञान का कोटा हो गया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द BO, बेटर ऑब्जर्वर, व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू बी अ बेटर ऑब्जर्वर। और इसके साथ मैंने एक चीज जोड़ी थी, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू नॉट ऑब्जर्व एनीथिंग वेल। बट एक लास्ट टाइम चलते हैं, पॉजिटिविटी को देखते हैं। व्हाई टू वरी फॉर व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाई कांट वी एंजॉय फॉर व्हाट्स राइट। दिस इज माई कोटेशन, ठीक है। पेटेंट करवा दूंगा अभी जल्दी इसको मैं, बिकॉज दिस इज रिटन बाय मी। नहीं, मैंने कहीं से चोरी नहीं करा भाई, ये मेरा है, मैंने सोचा है इसको। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्यों सोचें? हमको सारी अच्छी बातें मालूम चल गई ना ऑब्जर्वेशन के बारे में। अगर मैं बेटर ऑब्जर्वर हूं तो मुझे पता है कि मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है। सो वाई टू वरी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं तो अच्छा करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, पॉजिटिविटी ऑब्जर्व करूंगा, स्किल्स ऑब्जर्व करूंगा। और एक एड ऑन चाहिए अगर, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को भी मैं आज से मानना शुरू करूंगा। आई विल गो टू द स्पिरिचुअलिटी, आई विल स्टार्ट मेडिटेटिंग, आई विल स्टार्ट rejuvenating. Meditating will lead you to rejuvenate. Rejuvenation is directly proportional to relaxation. When you are relaxed, you take concrete decisions. Concrete decisions leads you to a proper goal. Okay guys, so yeah, thank you so much इस वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए, हमारे साथ इस सेशन के अंदर में बने रहने के लिए, and we'll get you soon on the next topic, on the next phase of this particular video.